Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mona Arooj. Today topic is anatomy and physiology of air. The contents of the topic are introduction of the air, parts of the air, outer air, middle air, inner air, and physiology of hearing, and last one is vestibular system. Now we will discuss introduction of the air. Air is the sensory organ of the sound. यानी कि हम लोगों ने पढ़ते आए हैं कि 5 सेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में, उनमें से एयर जो है हमारा एक सेंसर है, हेयरिंग का सेंसर है. सेंस ऑफ हेयरिंग इज सेंसिटिव टू साउंड स्टिमुलाई. एवरी स्ट्रक्चर ऑफ एयर हैज़ देयर ऑन फंक्शंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट. हर एयर यानी कि एयर का जो हर स्ट्रक्चर है उसका अपना एक फंक्शंस होता है और वो हर फंक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Then next is the structure of the human ear. These are the following structures जो हम आगे डिस्कस करेंगे. Parts of the ear. There are 3 parts of the ear which are following: outer ear, middle ear, and last is inner ear. These are the parts of ear. It is the outer ear, in which this is also called tympanic membrane, the middle ear and the inner ear. Then first of all we will discuss outer ear. Outer ear consists of auricle, which is also called pinna, external auditory canal, and the last one is part of ear is tympanic membrane, which is also called eardrum. The next is auricle and pinna. It is a flap of elastic cartilage and it is covered by skin. Rim of auricle is called helix. Inferior portion of auricle is called lobule. It plays important role in localization of sound. It opens into external auditory canal. ये एक इलास्टिक कार्टिलेज का फ्लैप है, इसको कवर किया हुआ है, स्किन के साथ कवर किया हुआ है. ऑरिकल इसका जो ऑरिकल का रिम है उसे हम हेलिक्स कहते हैं और ऑरिकल के इंफीरियर पोर्शन को हम लॉब्यूल कहते हैं. इसका जो मेजर फंक्शन है वो साउंड की लोकलाइजेशन करना है. और नेक्स्ट ये जहाँ एंड होता है या इससे आगे जो स्ट्रक्चर ओपन होती है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है. This is the structure of the auricle and this is helix, which is the rim of the auricle, and this is the lobule, which is the inferior portion of the auricle or pinna. The next one is external auditory canal. This is the curved tube that is extend from pinna to eardrum. It is 2.5 cm long. Near the external opening of the external auditory canal, a few hairs or carominous glands are present. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की जो एक्सटर्नल ओपनिंग के करीब चंद बाल होते हैं और उसके अलावा कैरोमिनियस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं. कैरोमिनिक ग्लैंड्स क्या होते हैं? दैट सिक्रीट्स द सेरोमिनियस ग्लैंड्स जो होते हैं वो सेरोमिन को सिक्रीट करते हैं, जो कि एयर वैक्स होती है. कम्बिनेशन ऑफ हेयर्स एंड सेरोमिन हेल्प्स प्रिवेंट फॉरेन ऑब्जेक्ट्स एंड डस्ट फ्रॉम एंटरिंग द एयर. मतलब कि हेयर्स और सेरोमिन का जो कम्बिनेशन है ये कान में फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, कोई डस्ट, कोई यानी कि गर्द वगैरह को एंटर होने से प्रिवेंट करता है. दिस इज़ द यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल in this structure in the diagram. Then last part of the outer ear is the tympanic membrane, which is also called the eardrum. External auditory canal and that tympanic membrane, which is also called the eardrum. External auditory canal जो है के एंड पे tympanic membrane की स्ट्रक्चर मौजूद होती है. Tympanic membrane is the thin and semi-transparent partition बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड मिडल एयर. मतलब कि एक पार्टीशन है जो थिन है और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिडल एयर के दरमियान. टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय एपिडर्मिस एंड इट इज़ लाइन्ड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. The next part is the middle ear, and the middle ear is small air-filled cavity in the ear. It is lined by epithelium. It is separated from external ear by eardrum. It is separated from inner ear by oval window. मतलब कि external ear से ये eardrum के ज़रिए separate हुई हुई होती है और inner ear से ये oval window के ज़रिए separate हुई हुई है. The structures of the middle ear, auditory ocellus, oval window and Eustachian tube. Then आगे हम इन 3 structures को explain करेंगे. First is auditory ocellus. These are the smallest 3 bones of the body, and these are connected to each other by synovial joints, and these bones are malleus, stapes and incus.
and in this following following diagram, these are following structures. First is the malleus and incus steps. Then next is oval window. Oval window, it is a membrane covered opening that leads from the middle ear to the vestibule of the inner ear. ये स्टार्ट होती है मिडल ईयर से और लीड्स यानी कि फॉलोइंग आगे जाके ये इनर ईयर ऑफ वेस्टिब्यूल ऑफ द इनर ईयर के साथ कनेक्ट होती है. ओवल विंडो इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ द मिडल ईयर. ये इंटरसेक्शन है मिडल ईयर का विद इनर ईयर एंड डायरेक्टली कनेक्टेड बाय स्टेप्स. मतलब कि यानी कि इंटरसेक्शन है इनर ईयर और मिडल ईयर के दरमियान और उससे डायरेक्टली कनेक्ट करता है स्टेप्स के ज़रिए. And in this following diagram, oval window is here. This structure is oval window. The next is Eustachian tube. Eustachian tube is the middle ear is an air-filled space. It consists of यानी कि Eustachian tube का जो part है air-filled space part है वो है Eustachian tube and it consists of the bone and hyaline cartilage. इसमें bone और hyaline cartilage मौजूद होते हैं. This runs from middle ear to the nasopharynx behind the nose. ये मिडल ईयर से स्टार्ट होती है और नोज़ के पीछे जो नेज़ोफेरेंक्स है वहाँ तक इनकी एक्सटेंड हुई होती है. इट इज़ नाउ क्लोज एट द फेरेंजियल एंड पे ये वहाँ क्लोज हो जाती है. इट हेल्प्स मेंटेनिंग एयर प्रेशर एट द बोथ साइड ऑफ द एयर ड्रम. एयर ड्रम की बोथ साइड पे ये प्रेशर को मेंटेन करती है. एंड इट इज़ फॉलोइंग डायग्राम. इट इज़ द यूस्टेकियन ट्यूब, मिडल एयर ड्रम. ठीक है. And the last part of the ear is the inner ear. It is also called the labyrinth. There is two divisions of the labyrinth: outer bony labyrinth and the inner membranous labyrinth. And labyrinth, the two parts of the labyrinth are described here. Outer bony labyrinth. Outer bony labyrinth, it is a series of the cavities in the temporal bone. यानी कि वो क्या उन कैविटीज़ का सीरीज़ है जो कि टेम्पोरल बोन में मौजूद होती हैं. ये 3 रीजन्स में डिवाइड होता है: सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया. इट इज़ लाइन्ड बाय और पेरियोस्टियम एंड कंटेन्स फ्लूइड पेरिलिम्फ विच इज़ सिमिलर टू द CSF cerebrospinal fluid which is present in brain and protects the brain from any trauma. ठीक है. And the next is the inner membranous labyrinth. It is a series of sacs and tubes. हमने पीछे देखा था कि आउटर बोनी लेब्रिंथ जो है वो कैविटीज़ की सीरीज़ है, जबकि आउटर यानी कि इनर मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो है ये सैक्स और ट्यूब की यानी कि सीरीज़ है इनसाइड द बोनी लेब्रिंथ. इनर मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो है वो लाइंड होती है एपिथेलियम से. इसमें जो फ्लूइड है वो एंडोलिम्फ है और इसके जो मेम्ब्रेनस हैं यानी कि लेब्रिंथ के जो पार्ट हैं कंटेन्स में 2 सैक्स होती हैं, यूरिसल एंड सेक्यूल. एंड द फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग. एंड जो हमने पीछे पढ़ा वो एनाटमी थी यानी कि एयर की. अब हम नेक्स्ट उसकी डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द हेयरिंग. एरिकल डायरेक्ट्स साउंड वेव्स इन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. यानी कि फर्स्ट पर जो यानी कि फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारी एयर की वो है ऑरिकल. तो यहाँ से साउंड वेव जो है वो हमारे ऑरिकल में इंटर होती हैं, वहाँ से वो यानी कि मूव करती हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में. देन व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक टू द एयर ड्रम दैट कॉजेज एयर ड्रम टू वाइब्रेट. जब साउंड वेव्स जो हैं एयर ड्रम के साथ स्ट्राइक करती हैं, वहाँ टकराती हैं, तो एयर ड्रम वाइब्रेट करता है. द सेंट्रल एरिया ऑफ द एयर ड्रम इज़ कनेक्टेड टू द एयर ड्रम कनेक्टेड टू द मेलियस विच स्टार्ट टू वाइब्रेट. यानी कि इस एयर ड्रम का जो सेंट्रल एरिया है वो मेलियस के साथ यानी कि कनेक्ट हुआ है. जब एयर ड्रम वाइब्रेट करेगा तो वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा. वाइब्रेशन जो होगी फिर मेलियस से कहाँ ट्रांसफ़र होगी, इंकस में. ठीक है. फिर इस तरह ये स्टेप्स जो होंगे वो मूव होंगे बैक एंड फोर्थ यानी कि रिपीट होते रहेंगे. इस तरह ये स्टेप्स जो होंगे फिर ओवल विंडो को इन एंड आउट जो है पुश करेंगे. द नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ द ओवल विंडो, वो जो पुशेस थे ओवल विंडो को जो इन एंड आउट मूव करवा रहे थे, वो मूवमेंट जो होगी वो यानी कि पैरेलिम्फ यानी में जो प्रेशर वेव यानी कि फ्लूइड प्रेशर जो वेव्स थी उन प्रेशर को मेंटेन करेंगी. फिर उसके वाइब्रेशन जो होगी वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी पे जाएंगी, वहाँ से पैरेलिम्फ थ्रो से यानी फिर पैरेलिम्फ से होते हुए एंडोलिम्फ पे जाएंगी. फिर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से इम्पल्सेस जो थी वो ब्रेन पे जाएंगी, वहाँ से 8th क्रेनियल नर्व से गुजरती है वो ब्रेन में ट्रांसफ़र हो जाएंगी. This is the physiology of the hearing and this is the structure.
And the last is the vestibular system. What is vestibular system? Vestibular system regulates balance. It is also within the inner ear. It is the structure of the inner ear. Semicircular canals determine movements in 3 planes. Semicircular canals जो हैं वो 3 planes में हमारे मूवमेंट को डिटरमाइन करती हैं. एंड विद इन ईच सेमिसर्कुलर कैनाल, हर सेमिसर्कुलर कैनाल के साथ एंडोलिम्फ होता है और हेयर्स होते हैं जो कि सेरिबेलम के साथ यानी कि कनेक्ट कर रहे होते हैं नर्व्स को सेरिबेलम में जाने के लिए. And thank you. This is the topic of anatomy and physiology of air. उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा. थैंक यू. खुदा हाफिज़.